اللہ کی رضا کے لیے عمل الفاظ پر ایک جامع مضمون تعارف انسان کا سب سے بڑا مقصد اسی دنیا میں کوئی عارضی کامیابی حاصل کرنا شہرت پانا نہیں بلکہ وہی کام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے دین اسلام میں ہر عمل کا معیار نیت ہے خالص ہو تو معمولی عمل بھی عظیم بن جاتا ہے اس مضمون کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کا مفہوم کیا ہے اس کی اہمیت کیوں ہے اسے حاصل کرنے کے عملی طریقے کیا ہیں رکاوٹیں کون سی ہیں اور عملی زندگی میں اس کا اطلاق کیسا ہونا چاہیے آخر میں ہم خلاصہ اور چند روحانی مسائل بھی پیش کریں گے جو روزمرہ زندگی میں فائدہ مند ہوں گی اللہ کی رضا کا مفہوم اللہ کی رضا سے مراد وہ حالت میں خوشنودی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے عمل سے محسوس فرماتے ہیں یہ خوشنودی دل کی سچائی نیت کی پاکیزگی اور اختیار کیے گئے عمل کی اطاعت علاؤ پر مبنی ہوتی ہے جب انسان کسی کام کو دکھاوے شہرت ذاتی مفاد کے لیے نہ کرے بلکہ صرف اللہ کے حکم اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے تو وہ عمل قبولیت کے قریب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمل شرعی حدود میں ہو دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوں اور اس میں عاجزی صبر ہو اخلاص ہو نیت کی اہمیت اسلام نے ہر عمل کو نیت سے مربوط کہا وہ محرکن باطن ہے جو عمل کو روح دیتی ہے نبی کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی ایک ہی ذات عمل مختلف لوگوں کے لیے مختلف درجات کا سبب بن سکتا ہے اس کا انحصار نیت پر ہے نیت کی صفائی کے لیے انسان کو خود احتسابی کرنی چاہیے اپنے محرکات کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر عمل سے پہلے اپنے دل میں یہ پکارنا چاہیے میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے عمل کی اقسام ایک عبادی اعمال نماز روزہ زکوٰۃ حج اذکار قرآن کی تلاوت وغیرہ یہ اعمال بنیادی طور پر اللہ کے حکم اور محبت کے لیے ہوتے ہیں مگر ان میں بھی نیت کا صاف ہونا ضروری ہے مثلا نماز فقط وقت گزاری کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے نزدیک قرب کا ذریعہ ہو دو اخلاقی و معاشرتی اعمال احسان سوادلام رحمی دوسروں کے حقوق ادا کرنا سچ بولنا امانت داری غریب کی مدد وغیرہ یہ اعمال معاشرے میں اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں کیونکہ اسی میں بندوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو پسند ہے 3 علم و تعلیم میں کوشش علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سنوارنے کے لیے علم دین و دنیا کی تبلیغ کرنا علم کا مقصد صرف ذات کا فائدہ نہیں بلکہ لوگوں کی ہدایت اور اللہ کی رضا بھی ہونا چاہیے 4 محنت و روزگار کمائی حلال طریقے سے کرنا اور اس میں حلال راستے اختیار کرنا روزگار میں ایمانداری اور عدل سے کام لینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کے عملی طریقے ایک نیت کو واضح اور روزانہ تازہ رکھیں ہر صبح ہر عمل سے پہلے نیت کی تجدید کریں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی نیت پر غور کریں کھانے کے لیے نماز سے پہلے ہاتھ دھونا گھر کے کام کو اللہ کے نام سے کرنا بچوں کو دین کی تعلیم دینا نیت کی واضح سے عمل میں برکت آتی ہے 2 علم حاصل کریں اللہ کی رضا کے اصول جاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرعی تعلیم سنت النبی اور اخلاقی اصولوں سے واقف ہو جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا عمل عزیز ہے اور کس طرح دل کو پاک رکھا جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں وہ عمل نافذ کر سکتے ہیں 3 احادیث و قرآن کی روشنی میں رہنمائی اللہ کی رضا کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اللہ نے اچھے اخلاق انصاف صبر اور توکل کی تاکید کی ہے حدیث میں بھی خلوص اور تقوی کی اہمیت بیان ہوئی ہے ان نصوص کو یاد رکھنا اور ان پر غور کرنا انسان کے عمل کو سیدھا رکھتا ہے 4 روزانہ خود احتسابی محاسبہ ہر رات اپنے دن کا محاسبہ کریں ان کاموں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا کن میں خود غرضی دکھاوا شامل تھا اس میں اصلاح کریں اور اگلے دن بہتر نیت کے ساتھ دوبارہ کوشش کریں 5 دعا اور استغفار دعا سے دل میں پختگی آتی ہے اور استغفار سے کمزوریاں دور ہوتی ہیں اللہ سے مدد مانگنے والا انسان زیادہ خالص نیت کے ساتھ عمل کر پاتا ہے روزانہ سچی دعا اور استغفار کو معمول بنا عبادات میں خشوع و خضوع تلاش کریں نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں قرآن کی تلاوت میں غور کریں اور اذکار کو دل سے ادا کریں جب عبادت میں دل شامل ہوگا تو عمل کا ثمرہ زیادہ ہوگا چھوٹے مگر مستقل اعمال اختیار کریں بڑی بڑی عبادات اچھی ہیں مگر مستقل چھوٹے اعمال کا ثواب زیادہ ہوتا ہے روزانہ صدقہ چھوٹے اذکار ایک چھوٹی بات سے باز رہنا ہے سب اللہ کی رضا کے لیے عمل ہیں جو مستقل رہیں تو بڑا فرق ہوتا ہے 8 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک عمل خالص کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے بغیر کسی دکھاوے کے لوگوں کی مدد کریں محنت سے کمائیں اور عدل و انصاف اپنا اللہ کی رضا کے لیے عمل کے فوائد
रूहानी सुकून। खालिस नियत से किए गए अमाल दिल को सुकून देते हैं, इंसान को एहसास कुर्बन अलाउ नसीब होता है जो दुनिया की हर नेमत से बढ़कर है। 2. आखिरत में कामयाबी। कुरान और संत ने बार बार बताया है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले लोग आखिरत में कामयाब होते हैं। दुनियावी फ़वाइद वक्ती हैं मगर आखिरत की कामयाबी दायमी है। 3. मुआशरती भलाई। जब अफराद अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखेंगे तो मुआशरे में अदल रहम और ताउन में इजाफ़ा होगा। 4. खालिक के साथ मजबूत ताल्लुक़। अल्लाह की रज़ा के लिए अमल रेशीनते बंदगी मजबूत करता है और ज़िंदगी के हर मरहले में रहनुमाई और मदद हासिल होती है। रुकावट और उनके हल। 1. दिखावा, रियाकारी। दिखावा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान दिखावे के लिए इबादत करे तो वो अमल कबूलियत से दूर होता है। हल, अल्लाह से खौफ व मोहब्बत के साथ नियत साफ रखें और राज व न्याज में खुद को मजबूत करें। 2. रिया और खुद नुमाई के लिए दूसरों की तारीफ की तलाश। सोशल मीडिया दौर में लोग अपने अमाल दिखाने की कोशिश करते आए। इबादत और नेकियों को जाती रखें। अगर शेयर करना लाजिम हो तो मकसद नेकी को आम करना हो ना कि तारीफ का वास्ता। 3. बेसवाब अमल। आदतों का कायम रहना। कई बार मामूली आदात जिनमें गज़ब, हसद या झूठ शामिल हो खुलूस को मुतासिर करती हैं। हल, खुद एहतिसाबी इस्तिग़फ़ार और इस्लाह अखलाक में मेहनत करें। 4. वक्त की कमी और मशगूलियात। ज़िंदगी की दौड़ में अल्लाह की रज़ा के लिए अमल पस पुश्त पड़ जाता है। अपने दिन का शेड्यूल मुकर्रर करें। इबादात और नफली अमाल के लिए वक्त निकाली और छोटे मगर मुस्तकिल आदात अपना। गलत फहमियाँ और गैर मुस्तनद इल्म। बाज़ औक़ात लोग नेक अमल के बारे में गलत इत्तलात लेकर अमल करते हैं जो असल मकसद खो देता है। मुस्तनद इल्म हासिल करें। उलमा किराम से मशवरा करें और कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ले अमल। मसल 1. नमाज के बाद सदका बतौर शुक्र। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर किसी ने किसी सबब से आसानी महसूस की तो इस खुशी में थोड़ा सा सदका दे। नियत ये हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए शुक्र अदा कर रही हूँ। 2. काम पर ईमानदारी। दुकानदार अपनी तराजू में कमी न करे और मुलाजिम अपनी मेहनत में सच्चाई इख्तियार करे। नियत साफ हो तो ये कारोबार इबादत बन जाता है। 3. घर में ख़ानदानी मसाइल में सब्र। घर के अंदर झगड़े और परेशानियां आती हैं। सब्र और हसन सलूक इख्तियार करके नेक नीति से काम लेना अल्लाह की रज़ा का जरिया बन सकता है। 4. इल्म का इश्तिराक। जो शख्स कोई इल्मी बात जानता है इसे सोशल मीडिया या मकामी मजालिस में खर्च करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। बशर्त नियत का नियत नेकी फैलाना हो ना कि शोहरत। दिल की हालत और अखलाक। अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करते वक्त दिल की हालत बहुत अहम। हिद के अवी तकब्बुर, हसद और हिद धर्मी दिल को मिटा देती हैं। इसके बदले में आजिज़ी, शुक्र, तवक्कल और मोहब्बत अल्लाह को दिल में जगह देनी चाहिए। इखलाक हसना इंसान की नियत को तक़वियत देते हैं और अमाल को माकबूल बनाते हैं। आखिरत का हिसाब और दुनिया की फितना। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करता है तो वो दुनिया की फितनों से बचने की कोशिश करता है। दुनियावी लालच, शोहरत और मादियात इसे असल मकसद से दूर कर देती हैं। अल्लाह की रज़ा को 6 मुक़द्दम रखने से इंसान का मिरकसिन तवज्जो आखिरत बनता है और उसके फैसले दूर अंदेशी और पर मबनी होते। आउनस्ट अमली टिप्स। 1. हर सुबह अल्लाह से एक मुख्तसर दुआ करें। अल्लाह मुझे तेरे हक में सच्ची नियत इनायत फरमा। 2. रोज़ाना कम अज़ कम 5 मिनट ज़ाती मुराक़बा तदब्बुर कुरान करें। 3. हफ्ते में एक बार अमन एहसान करें। किसी गरीब की मदद या किसी हक की अदा। सोशल मीडिया पर नेकी के लिए मवाद शेयर करें मगर अपनी नेकी को दिखावे के लिए ना बनाएं। 5. अहम फैसलों में मशवरा लें और नियत को वाज़े रखें। खुलासा अल्लाह की रज़ा के लिए अमल इस्लाम का मरकज़ी तसव्वुर है। नियत की सफाई, मुसलसल खुद एहतिसाबी इल्म व अमल का इम्तिज़ाज और अखलाक हसना वो सुकून है जिन पर अमल करके इंसान अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकता है। इबादत, मुआशरती खिदमत, इल्म व अमल और रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसले सभी जब खालिस नियत के साथ हों तो अजीम सवाब और रूहानी कामयाबी देते। और रुकावटों को पहचान कर उनका हल इख्तियार करें और हर दिन अपनी नियत को ताज़ा करें ताकि ज़िंदगी एक मुसलसल इबादत बन जाए। दुआ और इख्तितामी कलिमात। आखिर में दुआ यही है, अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक दे जिनसे तेरी रज़ा हासिल हो। हमारे दिलों से रिया, तकब्बुर और हसद को दूर फरमा और हमारे अमाल को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुलूस नियत अता फरमाए और हमारे अमाल को अपने करीब कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर मुख्तसर लेक्चर / बच्चों के लिए आसान अल्फाज में मजमून या इसी मजमून का 10 निकाती खुलासा भी बना दूं। बताएं आप कौन सा वर्जन पसंद करेंगे।
अल्लाह की रज़ा के लिए अमल अल्फाज के करीब एक जामे मज़मून तारुफ इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद वही अमल है जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाए। दुनियावी मकासद वक्ती खुशी देते हैं मगर दिल की हकीकी तस्कीन और आखिरत की कामयाबी इसी में है जो नियत, तरीक़ा और मकसद तीनों में अल्लाह की खुशनुदी को मुक़द्दम रखे। इस मज़मून में हम इस बात का मुफस्सल बयान करेंगे कि कौन से अमाल रोई और तर्ज़ ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए अहम समझे जाते हैं, उनके महरक़ात तरीके, मुश्किलात और उनके रूहानी फ़वाइद। अल्लाह की रज़ा का मफ़हूम। अल्लाह रज़ा से मुराद है अल्लाह ताला की खुशनुदी, इसकी पसंदीदा राह पर चलना और उसकी मखलूक के साथ ऐसा सलूक करना जो इसकी हिदायत के मुताबिक हो। रज़ा इलाही कभी महज लफ्ज़ी इजहार नहीं बल्कि दिल की सच्चाई, नियत की पाकीज़गी और अमल की मुस्तकिल मिजाजी से हासिल होती है। नियत जब खालिस हो और अमल इसके मुताबिक हो तो हर मामूली अमल भी इबादत बन जाता है। नियत की सफाई अमल का पहला सुकून। अल्लाह की रज़ा के लिए सबसे पहली चीज़ नियत है। नियत ही अमल को इबादत बनाती है। कोई शख्स अगर किसी काम को दिखावा, मकाम, आफायदा के लिए करे तो वो अमल कम असर रखता है। नियत की सफाई के लिए चंद अमली इक़दामात। एक, हर काम से कबल दिल में ये इरादा करें कि ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए है। 2, मामूल बनाएं कि रोज़ाना सुबह रात हम अपने इरादों का जायज़ा लें। छोटे छोटे अमाल जैसे घर वालों के लिए खाना पकाना, माली मदद या किसी की मदद अल्लाह के नज़दीक नियत के साथ करें तो ये भी इबादत तावल्लुम और हिदायत, दुरुस्त रास्ता समझना। अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि इंसान इस्लाम के बुनियादी उसूल, अहकाम और इखलाकी ज़िम्मेदारियों को समझे। इल्म इख्तियार करना इबादत है। इल्म के बगैर अमल गुमराह कुन हो सकता है। इसलिए कुरान और सुन्नत की समझ बोझ के लिए बाकायदा वक्त निकाली, मोतबर उलमा और कुतुब से रहनुमाई हासिल करे। अमल ज़िंदगी में इल्म को नाफिज करें, सिर्फ मालूमात जमा ना करें बल्कि इस पर अमल करे। बात तो है कि अहमियत इबादतें, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, तिलावत कुरान और सदका अल्लाह की रज़ा के करीब पहुँचाने वाले सबसे ताकतवर वसाइल हैं। उनमें अस्मरारुत, खुशू और एहतमाम ज़रूरी आमसार। नमाज में खुशू पैदा करने की कोशिश करें। इसके लिए कब्ल अज़ नमाज ज़हनी और जिस्मानी तैयारी करें। रोज़ा ना सिर्फ भूख बर्दाश्त करना है बल्कि अपनी नफस की तरबियत करना है। रोज़ा के दौरान ज़ुबान, निगाह, अलिफ वर दिल पर काबू रखें। तिलावत कुरान रोज़ाना मामूल बनाएं, हता कि थोड़ा सा भी रोज़ाना पढ़ना बेहतर है बजाय ज़्यादा पढ़ने के। वक्फे वक्फे से अखलाक और मुआशरती रोय। अल्लाह की रज़ा में बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ हसन सलूक और अच्छे अखलाक का है। नबी करीम का अखलाक आला तरीन नमूना है। अमली निकाह अपने घर वालों के साथ शफ़क़त, इज़्ज़त और अदल का बर्ताव करें। माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी और मुहताजों के साथ एहसान कर जैविक, ग़ीबत, बकवास और नाजायज़ तर्ज़ अमल से बचें। ये दिल को सिया करते हैं और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। कुर्बानी और इसार। अल्लाह की रज़ा के लिए खुद को, वक्त, माल और तवानाई को कुर्बान करना ज़रूरी है। इसार वो चिंगारी है जो इंसान को दुनियावी खुद गर्जी से निकाल कर खुदाई मोहब्बत की तरफ ले आती है। तरीक़े सदका और खैरात को बाकायदा मामूल बना, मुआशरत खिदमत में हिस्सा लें। मसलन यतीमों के लिए ताउन, मसाजिद की तामीर या तालीम के मंसूबे। मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करें, ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके करीब ज़रूरतमंद आओ। सब्र और शुक्र का इम्तिजाज। अल्लाह की रज़ा के हुसूल में सब्र और शुक्र दोनों की बड़ी अहमियत है। मुश्किल वक्त में सब्र और नेमत में शुक्र गुजार इंसान अल्लाह के करीब होता है। अमली मशवरे, मशकालात में शको करने के बजाय अल्लाह से उम्मीद रखें और मुनासिब हल तलाश करें। शुक्र के इजहार के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि हिकमत के साथ अमल करना है। दिल की हालत तक़ू और इखलास। अल्लाह की रज़ा के लिए दिल का पाक होना ज़रूरी है। अल्लाह से डर और गुनाहों से बचने की हालत और इखलास। सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करना दिल को नर्म करते हैं। अमली टिप्स, रोज़ाना खुद एहतिसाबी करें कौन सी बातें दिल को भारी कर रही हैं। गुनाहों से फौरी तौबा करें और इस्लाह का अज़्म रखें। रोते हुए आजिज़ी के लम्हे तलाश करें। दिल का नर्म होना तक़ू में मददगार है। अमल में इस्तिक़ामत और मामूलात। एक बार अच्छा इरादा करना काफ़ी है, इस्तिक़ामत ज़रूरी है। बेहतर है कि इंसान कम मगर मुस्तकिल अमल अपनाए बजाय इसके कि वो बड़े बड़े अहद करके जल्दी छोड़ दे। मिसाल, रोज़ाना थोड़ा कुरान, थोड़ा ज़िक्र और हफ्ते में कोई बड़ा अमल जैसे सदका, अफ़ू और खुसूसी दुआ का एहतमाम के बुरा छोड़ने के लिए एक
मंसूबा बनाएं और छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करें। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके दीनी सफ़र में मददगार हों। मिल में तवाज़ुन, दुनिया और आखिरत का हसन इंतज़ाम। अल्लाह की रज़ा हासिल करते हुए दुनियावी जिम्मेदारियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लाम ने दुनियावी ज़रूरियात को जायज़ और मुक़द्दस के दरमियान तवाज़ुन सिखाया है। अमली रहनुमाई, अपने वाजिबात पूरे करें, तालीम, काम, ख़ानदान की देखभाल, मगर उन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए अदा कर देना के मामलात में अमानत, ईमानदारी और शफाफियत अपनाएं। दौलत कमाने के तरीक़े जायज़ और इस्लाम के मुताबिक हों। आज़माइशें और उनका मतलब ज़िंदगी की आज़माइशें इंसान को आज़माने और पाक करने के लिए आवानाओं कबूल करना और मैं सब्र और शुक्र का मुज़ाहरा करना अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनता है। अमल रवैया, मुश्किल वक्त को फुर्सत समझें, ये आपके ईमान की तज़किया का ज़रिया हो सकता है। हर आज़माइश में कोई सबक तलाश करें, खुद को बेहतर बनाने का अज़्म करें, मायूसी से बचें और दुआ में इस्तिक़ामत रखें। दिल की नरमी के अमली इशारे दिल को नर्म रखने के लिए रोज़ाना की आदत में तब्दीली लाएं। सुबह की इब्तिदाई घड़ी में अल्लाह का जिक्र और कुरान पढ़े। नालोगोहे के साथ शफ़क़त और मुस्कुराहट का मामूल बनाएं। अल्लाह की मखलूक में हसन सलूक और मदद की आदत डालें। दुआओं और रब्न इलाही, अल्लाह की रज़ा के हुसूल में दुआ का मकाम बहुत अहम है। दुआ इंसान को रब के साथ जोड़ती है और नियत की तस्दीक करती है। अमली उमूर, ख़ास औक़ात में दुआ करें। नमाज के बाद सजदे में तहज्जुद दुआ में सिर्फ अपने फ़ायदे की नहीं बल्कि दूसरों की खैर की भी इल्तिजा करें। दुआ के साथ अमल भी जारी रखें। दुआ और अमल दोनों साथ होने चाहिए। मुखलिस अमल के दर्जा और अजर, अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया मुखलिस अमल दुनिया व आखिरत में अजीम अजर रखता है। बाज़ दर्जात में अमल का अजर बढ़ता है। खुलूस, सब्र, इस्तिक़ामत और मुसीबत में सबात। अमली नुक्ता, छोटे अमाल को भी खुलूस के साथ करा बड़े सवाब का जरिया बन सकते हैं। आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। एक, रियाजत, कठिन तरीक़े जो इस्लाम में ममनू हों। 2, दिखावा और रिया, अमल को लोगों के सामने दुकेना। 3, इल्म के बगैर अमल, नितजता, गलती और शर्मंदगी। 4, आसानियों में गफलत, इबादत का तकसून। रज़ा के लिए रोज़मर्रा प्लान। अमली रहनुमा, 1, सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें और नियत वाज़े करें। 2, सफ़ाई नमाज और मुख्तसर कुरान तिलावत रोज़ाना मामूल बना। रोज़ाना एक नेक अमल, किसी की मदद, सदका या किसी के लिए दुआ। 4, हफ्ते में एक दिन इल्म और मुराक़बा के लिए मुख्तस करें। 5, माहाना लिहाज से अपन बढ़िए अमाल का जायज़ा लें और बेहतरी के अहदाफ तय करें। खुलासा और नतीजा, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल एक जामे सफ़र है जो नियत की सफ़ाई, इल्म, इबादत, अखलाक, इसार, सब्र और दिल की नर्म रूहानियत से मिलकर बनता है। ये कोई एक लम्हे का प्रोग्राम नहीं बल्कि ज़िंदगी भर की मुसलसल कोशिश है। हर फर्द अपने मकाम, हालात और ताकत के मुताबिक अल्लाह की रज़ा के हुसूल का रास्ता अपना सकता है। बात यह है कि अमल में इस्तिक़ामत, खुलूस और क़ल्बी ताल्लुक़ हो। यही वो अनासिर हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाते। आखिर दुआ, अल्लाह ताला हमें वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो उसकी रज़ा का ज़रिया हो, हमारे दिलों को खालिस करे और हमें सचवा तक़ू अता करे। अल्लाह हमें अपने करीब रखे और अमल में साबित कदमी नसीब फरमाए। अगर आप चाहें तो मैं इस मज़मून को अल्फाज तक मज़ीद तूल दे दूँ। मसलन तारीख़ी मिसालें, कुरान और हदीस के हवाले, मुख्तसर रोज़मर्रा के मखसूस केस स्टडीज़। बच्चों के लिए आसान खुलासा शामिल कर दूँ। बताइए कौन सा इजाफी हिस्सा शामिल करना पसंद करेंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए अमल, अल्फाज पर मुश्तमिल मुकम्मल मज़मून तमहीद। ज़िंदगी का मकसद अगर समझ लिया जाए तो इंसान के तमाम अमाल का रुख दुरुस्त हो जाता है। इंसान दुनिया में महज खाने पीने या दुनियावी कामयाबियां हासिल करने के लिए नहीं आया बल्कि इसका असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। अगर अमल के पीछे नियत अल्लाह की खुशनुदी की हो तो मामूली सा काम भी इबादत बन जाता है और अगर नियत दुनिया और शोहरत की हो तो बड़े अमाल भी बेवज़न हो जाते हैं। नियत की अहमियत, नबी करीम ने फरमाया, अमाल का दार और मदार नियतों पर है। बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक असल कीमत किसी अमल की ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि इसके पीछे छपी नियत की होती है। अगर नियत खालिस अल्लाह के लिए हो तो वो अमल बाबरकत बन जाता है, चाहे वो मामूली सा काम ही क्यों ना हो। मसला, अगर कोई शख्स भूखे को खाना देता है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे सही कहें तो वो अमल दिखावा बन जाता है। लेकिन अगर वही काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे तो वो इबादत शुमार होता है। अल्लाह की रज़ा का मतलब, अल्लाह की रज़ा का मतलब ये है कि इंसान अपने तमाम काम, खा दीनी हो या दुनियावी, सिर्फ इस नियत से करे कि अल्लाह ताला
खुश हो जाए। इसमें ना अपनी ख्वाहिश शामिल हो, ना लोगों की खुशनुदी, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुक्म की तामील मकसूद हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो जो कुछ देते हैं देते इसलिए हैं कि उनके दिल इस खौफ से कांपते हैं कि वो अपने रब की तरफ रूठ कर जाएंगे। सूरत अल-मामून 7। ये आयत बताती है कि नेक बंदे अपने अमाल को अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम देते हैं, न कि फ़ख्र, अनाम व नमूद के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए अमल की पहचान अल्लाह की रज़ा के लिए किए गए अमल में चंद नुमाया खुसूसियात होती हैं। एक, खुलूस नियत, अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। दो, या से पाक होना, दिखावा तारीफ की ख्वाहिश शामिल न हो। तीन, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना, अमल शरीयत के दायरे में हो। चार, साबित कदमी, हालात जैसे भी हों इंसान अपने इखलास पर कायम रहे। पाँच, नताइज पर तवक्कल, कामयाबी या नाकामी की फिक्र न हो, बस अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। कुरान वो हदीस में अल्लाह की रज़ा के लिए अमल की तरगीब अल्लाह ताला ने मुताद्दिद मकामात पर अपने बंदों को याद दिलाया है कि अमाल खालिस इसी के लिए करें, और उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, दीन को इसी के लिए खालिस रखते हुए। सूरत अल-बीना 5। इस छोटी तरह एक और जगह फरमाया, जो कोई आखिरत चाहता है और उसके लिए कोशिश करता है, जबकि वो मोमिन भी हो, तो ऐसे लोगों की कोशिश अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है। सूरत अल-इसरा 19। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी अमल को इस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक वो खालिस इसके लिए ना हो और उससे इसकी रज़ा मकसूद ना हो। निसाई खुलूस नियत की मसल 1, सदका और खैरात। अगर कोई शख्स मोहताज को मदद इसलिए देता है कि अल्लाह खुश हो जाए तो वो नेकी है। 2, तालीम देना। अगर उस्ताद इल्म इस नियत से दे के लोग फ़ायदा उठाएं और अल्लाह राज़ी हो तो इसका हर लम्हा इबादत है। 3, घर के काम। अगर औरत घर के काम अल्लाह के हुक्म की तामील में करे, शौहर और बच्चों की खिदमत नेकी समझ कर करे तो वो भी इबादत है। 4, कारोबार। अगर ताजिर ईमानदारी से कमाए और हलाल रोज़ी का मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो वो भी इबादत है। अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की मिसालें दुनिया में बहुत से नबियों और लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियाँ दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया। वाक़या इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि अल्लाह की रज़ा के आगे सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी ज़िंदगी सादगी और इबादत में गुजारी ताकि अल्लाह राज़ी हो। अपने हिस्से का खाना भी मोहताजों में तकसीम कर दिया। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, खा वो थोड़ा ही क्यों ना हो। बुखारी ये इस बात की निशानदेही करता है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना कितना अहम है। अल्लाह की रज़ा और इंसान की कामयाबी। जो शख्स अल्लाह की रज़ा को अपना मकसद बनाता है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए, यही बड़ी कामयाबी है। सूरत अल-माइदा 1:1-9। दुनिया में भी ऐसे लोग सुकून व इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की रज़ा की खुशबू बसी होती है। अल्लाह की रज़ा के खिलाफ अमल के नुकसानात। जो अमल अल्लाह की रज़ा के खिलाफ हो वो इंसान के लिए नुकसानदेह है। 1, रियाकारी, दिखावे के अमाल क़यामत के दिन ज़ाय कर दिए जाएंगे। 2, गुरूर, अगर इंसान अपने नेकियों पर फ़ख्र करे तो वो नेकी बेअसर हो जाती है। 3, दुनियावी मुफाद, जो लोग नेकी सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए करते हैं वो आखिरत के अजर से महरूम रहते। आउरियन में आया है, जो दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहता है, हम उन्हें उनके अमाल का बदला इसी दुनिया में दे देते हैं, मगर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। सूरत हूद 15-16। अमल में इखलास पैदा करने के तरीक़े। 1, नियत की तजदीद। हर अमल से पहले नियत को दुरुस्त करना चाहिए। 2, ज़िक्र व दुआ, दिल को अल्लाह की याद से मुनव्वर रखें। 3, तकब्बुर से बचें, नेकी के बाद फ़ख्र और खुदपसंदी न करें। 4, खलवत में अमल, ऐसे काम करें जिन्हें सिर्फ अल्लाह देख रहा हो। 5, कुरान और सुन्नत पर अमल, हर अमल को शरीयत के मुताबिक बनाएं। अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारता है वो हर हाल में खुश रहता है। अगर नेमत मिले तो शुक्र अदा करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है। इसका हर लम्हा इबादत बन जाता है। नबी ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, इसके हर हाल में खैर है। अगर इसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, अगर तकलीफ मिले तो सब्र करता है। मुस्लिम यही रवैया अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाला रास्ता है। अमल में नियत की आजमाइश। कभी कभी अल्लाह बंदे को ऐसे हालात में डाल देता है
जहानियत की आजमाइश होती है। अगर बंदा इखलास पर कायम रहे तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। मसलन अगर कोई नेकी करे और लोग इसकी तारीफ ना करें तो वो मायूस ना हो, बल्कि यही समझे कि मैंने ये अल्लाह के लिए किया था, लोगों के लिए नहीं। अल्लाह की रज़ा के लिए छोटे छोटे अमाल, मुस्करा कर किसी को देखना, रास्ते से पत्थर हटा दीन इस्लाम करना, किसी के लिए दुआ करना, माफ़ कर देना, किसी के दुख में शरीक होना, है सब मामूली नज़र आने वाले अमाल दरअसल अल्लाह की रज़ा के रास्ते अल्लाह की रज़ा और इज्तिमाई अमल अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी काम करना ज़रूरी है। खिदमत गरीबों के लिए फलाही काम, तालीम, दीन की इशाअत, मुआशरे में इंसाफ और अदल की तरवीज, ये सब अल्लाह की रज़ा के आला दर्जे के अमाल हैं। अल्लाह की रज़ा हासिल करने वालों का अंजाम कुरान कहता है, ए नफ्स मत में अपनी रब की तरफ लूट चल, इस हाल में कि तू इससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। सूरत अल-फज्र 27-28। ये आयत इन खुश नसीबों के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी। उनके लिए आखिरत में अबदी कामयाबी और जन्नत की नेमतें हैं। नतीजा अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना एक मोमिन की जिंदगी का मरकज़ है। ये वो रोशनी है जो दिलों को मुनव्वर करती है, अमाल को मकबूल बनाती है और जिंदगी में सुकून अता करती है। अगर इंसान हर अमल से पहले ये सोच ले कि क्या मेरा रब इस अमल से खुश होगा, तो उसकी जिंदगी जन्नत का नमूना बन सकती है। खुलासा अल्लाह की रज़ा के लिए अमल नियत की खालसी पर मबनी है, शरीयत के मुताबिक होना ज़रूरी है, दिखावे से पाक होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखना चाहिए, इतने फ़ायदे नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी मकसूद होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने हर अमल को अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। आमीन रब अल आलमीन। किया अब चाहेंगे कि मैं इसी मजमून का खुलासा अल्फाज में वीडियो स्क्रिप्ट अंदाज में भी तैयार कर दूं ताकि इसे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जा सके।